we will basically discuss the stock exchange, that is a secondary market of India. So first of all, we will start with the introduction that financial market where existing securities are traded in the referred to as a secondary market or a stock market, and it provides the liquidity to financial instruments which are already issued in the primary market. And for the effective function of secondary market, proper controlling is exercised through the three important processes: recognition of stock exchange, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर. सो सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़, मतलब जो प्राइमरी मार्केट में पहले से बाय हो चुकी हैं सिक्योरिटीज़, उनके साथ डील करते हैं. और जो इनका मेन जो सेकेंडरी मार्केट का फंक्शन है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है: रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, listing of securities and registration of brokers. So what are the functions, services, features and roles of the secondary market? It has a ideal, it should be ideal meeting place, providing safety to the investors, liquidity, speculative trading, sound price setting, economic barometer, dissemination of market data, perfect market conditions, effective challenging of saving, optimal resource allocation, platform for public debt, motivation for improved performance by the companies, availability of business information, evaluation of securities, investor education, industrial financing and company regulation, enable the investor to reduce their risk through diversified portfolio. So they all are the basic main, we can say, roles, services and the functions of the stock exchange of the secondary market of the India. So first of all, we will discuss now the definition of the stock exchange. So the Security Contract Regulation Act 1956 स्टॉक एक्सचेंज को डिफाइन करते हैं दैट इट इज़ एन एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड है, यहाँ चाहे वो नहीं है, एस्टैब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड controlling business in buying and selling and dealing in the securities under the said act. Following securities can be traded on the stock exchange: share, debenture or other marketable securities of like nature of any incorporated company, government security, right security. सो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एसोसिएशन है जो क्या करती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ करती है, जिसमें शेयर, डिबेंचर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड राइट सिक्योरिटीज़, सारी सिक्योरिटीज़ आती हैं. Now we will discuss the history of the stock exchange. The first organized stock exchange in India is BSE, that is a Bombay Stock Exchange, जो कि आपकी एस्टैब्लिश हुई थी 1875 में. बट ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी यूज टू टेक प्लेस इन 18th सेंचुरी. जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी. डीलिंग वुड नॉट रेगुलेट बाय एनी कोड ऑफ रूल्स नॉर एनी आवर्स ऑफ बिजनेस और कमिट टू सर्विसेज द कंडक्ट ऑफ मेंबर. The English East India Company in 18th century dominate business in securities and loan transactions, and evidence of existence of trade in stock of banks and certain companies available in price quotations in the newspaper. So जो सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में आई थी वो थी BSE. BSE मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसने पहले वो डीलिंग नहीं कर रहे थे ट्रेडिंग में, बट 18th सेंचुरी जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो हमने लोन्स और सिक्योरिटीज़ के साथ जो डीलिंग वो शुरू कर दी. And 1836 में Englishman of Kolkata reported the loan of East India Company as well the share of Bank of Bengal and share of bank like Corporation Bank, Charter Mercantile Bank, Oriental Bank and Old Bank of Bombay were treated. तो ये सारे बैंक्स ने फिर बिजनेस करना उसमें शुरू कर दिया. एंड 1839 में न्यूज़पेपर ने आगरा बैंक, यूनियन बैंक की कोटेशंस को देना भी स्टार्ट कर दिया. देन The American Civil War 1860-65 has visible impact on Indian share market. जब अमेरिकन सिविल वॉर हुई तो उसका बहुत जो इम्पैक्ट पड़ा हमारी शेयर मार्केट के ऊपर. जो हमारी सप्लाई ऑफ कॉटन टू यूरोप वो टोटली स्पोर्ट हो गई थी एंड अनलिमिटेड डिमांड फॉर इंडियन कॉटन. सो इंडियन कॉटन की अनलिमिटेड डिमांड थी, तो वहाँ पे इससे बहुत सारे जो ब्रोकर्स हैं 1860 में जो कि
इफ़ेक्ट हुए. एंड बाय द मिड 19th सेंचुरी, जब 19th सेंचुरी हुई, रेलवेज़, ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट हुई, जिसके कारण जो हमारा जो स्टॉक मार्केट है और भी इंक्रीज़ होना शुरू हो गया. अब जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में देखो, बिफोर वर्ल्ड वॉर जो था उसमें थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि 1875 में आई, देन अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज था जो 1894 में आया, और कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज जो 1908 में आया. आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड में 1956 SCR granted recognition to establish regional stock exchange. नाउ अब मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हमने बताने कौन कौन से. इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज कैन फ्रीली एस्टैब्लिश बिटवीन एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. वॉलेंट्री एसोसिएशन जो थी उसमें थी BSI जो कि थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, इंदौर स्टॉक एक्सचेंज. फिर आती है पब्लिक लिमिटेड, इसमें कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, कोचीन ये सारी थी. देन आती है बाय गारंटी, इसमें हैदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर ये सारी ऑर्गेनाइजेशन थी. देन व्हाट आर द रेगुलेशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. जो स्टॉक एक्सचेंज है वर सब्जेक्ट टू सेल्फ रेगुलेशन टिल 1956, बट नाउ देयर इज़ अ 3 टायर रेगुलेशन. पहले जो स्टॉक एक्सचेंज थी, जो इसके कोड एंड कंडक्ट्स थे वो सच नहीं थे, तो ये हम जो भी ये स्टॉक एक्सचेंज चलाता था वो खुद इसको डील करता. लेकिन अब ये लेवल्स में डिवाइड हो चुकी हैं. फर्स्ट लेवल में आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. सेकेंड लेवल में हमारे आती हैं SCRA एंड SEBI, दैट इज़ द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. देन थर्ड लेवल पे आती है आपकी सेल्फ रेगुलेशन. इसमें बेसिकली क्या क्या होता है, लिस्टिंग डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, कंप्यूटर एंड ED डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन और ऑडिट डिपार्टमेंट, मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट एंड इन्वेस्टर सर्विसेज डिपार्टमेंट. नाउ अब हम बात करेंगे सबसे पहले BSE की, दैट इज़ अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ये कब इस्टेब्लिश हुई? इस्टेब्लिश हुई 1875 में, और जो इसका सेंसेक है वो है BSE सेंसेक, और ट्रेडिंग टाइम इनका मंडे टू फ्राइडे है 9:15 AM टू 3:30 PM. नंबर ऑफ़ कंपनीज इसमें मोर देन 5500 कंपनीज जो कि लिस्टेड है, और सेटलमेंट साइकिल है इनका T+2 डेज़ का. और ये ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ट्रेडिंग बोल्ट है. ये थी आपकी BSE, दैट इज़ अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ये क्या है, जो आप सोचोगे ये सब क्या है, ये सब ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं जो सेकेंडरी मार्केट में डील करती हैं. जो पहली कंपनी डील करती है वो है हमारी BSE, दैट इज़ अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. सेकंड है हमारी NSE इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. ये 1992 में इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि जिसने फर्स्ट टाइम मॉडर्न एक वे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड किया था. इसके जो इंडेक्स है उनको हम कहते हैं सेंसेक निफ्टी. इसमें मोर देन 1300 कंपनीज जो लिमिटेड हैं. ये वर्ल्ड 12th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज कंपनी बनी थी 23 जनवरी 2015 को. ये भी ऑटोमेटिकली स्क्रीन बेस्ड है, ठीक है. एंड इसने फर्स्ट टाइम इक्विटी डेरिवेटिव्स को इशू किया था. देन आता है आपका MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. ये इंडियाज़ फर्स्ट लिस्टेड एक्सचेंज कमोडिटी फ्यूचर एक्सचेंज दैट फैसिलिटी ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ कमोडिटी फ्यूचर ट्रांजैक्शन. ये बेसिकली जो है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस को डील करती है, और ये स्टार्ट कब हुई थी? नवंबर 2003 में. एंड ये सारे SEBI के अंदर ही जो डील करती है सब कुछ. और ये क्या क्या ऑफर करती हैं? ये इंडस्ट्रियल मेटल्स, एनर्जी एंड एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को बेसिकली ये डील करती हैं. OTCEI वो जो है वो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी 1990 में. एंड ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंडर आता है. और ये सेटअप हुई टू एंटरप्राइज प्रमोटर एंड राइजिंग फाइनेंस फॉर न्यू प्रोजेक्ट इन कोस्ट इफेक्टेड मैनर. तो ये बेसिकली इसका काम क्या था? इसका काम था टू रेज द फाइनेंस टू न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए आपको अपने फाइनेंस को इसमें रेज करना होगा. और इसमें द एक्सचेंज है 115 लिस्टिंग एंड असिस्टेड टू प्रोवाइड कैपिटल फॉर द एंटरप्रेन्योर्स. सो ये यहाँ पे 115 कंपनीज जो इसके अंदर लिस्टेड है, एज वेल एज ये बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को, एंटरप्राइजेस को कैपिटल मतलब पैसे प्रोवाइड करती थी. हु वुड फाइंड OTCI हेल्पफुल? कि OTCI जो हमने अभी पढ़ा है वो कंपनी कैसे हेल्पफुल है. ये हाई टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस
करती है। कंपनीज विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल, ये किन किन के लिए हम ये कह सकते हैं बेनिफिशियल है, उनके लिए बेनिफिशियल है विच हैव हाई टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज with the high growth companies which is only focus on the new product which is seeking for the finance for the business project or which have a paid up capital below 3 crores and which have a set up enterprise do not have 3 years track records and which do not have a 10% equity debt participation. तो ये इन सारी कंपनीज के लिए बेनिफिशियल है। एग्ज़िट ऑफ OTCI, तो हमें अगर OTCI से एग्ज़िट करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। ऑन अप्रैल 2005 द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अप्रूव द एग्ज़िट प्लान ऑफ OTCI मेकिंग 12th boards to exist under the policy announced by the Capital Market Regulation in May 2012. If OTCI failed to achieve annual trading turnover of at least 1,000, it applied to SBI for a voluntary. तो OTCI आपको बेसिकली फाइनेंशियल एग्जिस्टेंस बढ़वाने में हेल्प करेगी, बट अगर आप फाइनेंशियल आप नहीं अच्छी तरह से अपने बिजनेस को कर पा रहे तब आप इसमें से एग्जिट हो जाओगे। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, कि हम इसमें ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। द ट्रांजेक्शन इन सेकेंडरी मार्केट पासिस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट फेसेस, 3 फेसेस में ये निकलती है, ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग, जहाँ जो स्टॉक एक्सचेंज है वो आपको ट्रेडिंग करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसे NCI, BCI जो हमने पढ़ा, इन सारी जगहों पे आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डिटरमाइन द फंड्स एंड सिक्योरिटी ऑब्लिगेशन द ट्रेडिंग मेंबर्स एंड इंश्योर द ट्रेडिंग इज सेटल थ्रू एक्सचेंज ऑफ ऑब्लिगेशन। क्लियरिंग में आपको फाइनेंस आपको को जो प्रोवाइड करना है और आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो प्रोवाइड किए जाते हैं। The clearing banks and the depositor provide the necessary interference between custodian clearing members for the settlements of fund and the security application for trading members. So settlement क्या है? The process of fulfillment of obligation of trade by parties to transaction is known as a settlement. So जिसमें हम parties की obligation को मैचअप करते हैं अपने साथ, उसको हम सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट के लिए जो हम T+2 अप्लाई करते हैं, द ट्रेड एग्जीक्यूट ऑन द फर्स्ट डे सेज ऑन मंडे हैव टू बी सेटल ऑन द थर्ड डे। T मतलब ट्रेड डे +2 दिन और कि अगर आपकी मंडे को ट्रेडिंग हुई है 2 दिन लग के आपकी जो ट्रेडिंग है वो आपकी ट्रेडिंग सेटलमेंट हो जाएगी। तो पहले आता है ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। ट्रेडिंग में आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, क्लियरिंग में आप अपनी ऑब्लिगेशंस के बारे में बताते हो और सेटलमेंट में आपकी उस ऑब्लिगेशंस की सेटलमेंट कर दी जाती है।